शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों। हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर मैं कक्षा 8वीं अ की छात्रा खुशी वर्मा और मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा सारा जावेद आप सभी का अभिवादन करती हूँ। दृढ़ता हो तो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आज़ाद की जैसी हंसती हो, उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे जैसा ताव मिले। हे ईश्वर, जन्म दोबारा दो तो धरती माँ की छाँव मिले। दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहाँ बचपन से बच्चों को संस्कार देकर यह सिखाया जाता है कि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। हमारी धरती माँ पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने से यहाँ आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने अधीन कर लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हमारे देश की वीर योद्धाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। आज हम हमारे वीर जवानों को, उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करने, भारत माँ के सच्चे सपूतों को नमन करने के लिए और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए इस दिवस के पहले प्रदर्शन की शुरुआत करते हैं। अपने विचार हमारे समक्ष रखने जा रही है कक्षा 8वीं ब की वंशिका जैन। A very good morning to everyone. Today, I, Vanshika Jain from class 8, will be delivering a speech on Independence Day. Today, we are here to mark the completion of 75 years of independence. Independence Day is the most significant day in the history of India as it reminds us of the bravery and struggle of our freedom fighters. The entire nation celebrates this day with full spirit of patriotism and enthusiasm. India is a land of diversity where different people of different caste, religion, culture and belief live together. It is the biggest democracy in the world that celebrates its independence on 15th of August every year. On this day, we pay homage to our fighters who fought and gave up their lives for our independence. We all are aware of the fact that for about 2 centuries, Britishers managed to rule over us. Also, the residents endured a lot because of these oppressors. We battled for our freedom, yet worked vigorously under the directions of our pioneers, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and many more. Some of these pioneers picked the way of violence while others non-violence. But the definitive point was to drive out these Britishers from the nation. Jawaharlal Nehru was chosen as our first Prime Minister who gave a beautifully worded speech named Tryst with Destiny, starting with the words, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." Since then, the day started with the ceremony which is held at Red Fort in Delhi, where our Honorable Prime Minister and President addresses the entire nation and hosts the tricolor flag. After the flag hosting, 21 gunshots are fired in honor of the occasion. This marks the beginning of the event, and further a number of acts and cultural activities are performed to show the diversity and unity and strength of our country. A parade of all the Indian forces takes place. This year, the celebration of Independence Day would be different as we know the entire world is facing a crisis due to the pandemic. There are orders from the center to all the states to avoid large gatherings and keep wearing masks and social distancing while celebrating Independence Day. It is known that the warriors like doctors, nurses, health and sanitation workers have been invited in the ceremony as a recognition of the noble service in the fight against COVID-19. My dear friends, we should work towards the actual freedom of the people of the country by helping them and making them self-dependent
and self-reliant and capable enough to support the country. This Independence Day, we should dream of an India which is strong and powerful and capable enough to face any kind of problem with unity. I would conclude saying that never keep the flag down, never tear the flag, because it is the pride of our country and our pride lies only in respecting it. Friends, the freedom that we have gained is the result of utmost hard work, tolerance, and sacrifices of many, and is of utmost importance. So, always be ready to save and protect it at any cost, even at the cost of your life. Thank you, everyone, and wish you all a very happy Independence Day. तो देखा आपने, वंशिका जैन ने हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताए और यह भी बताया कि महामारी के कारण इस बार चीज़ें कैसे अलग होंगी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने प्यारे देश के लिए क्या करना चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्र एक सुंदर गीत संगठन गढ़े चलो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों का। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। सारे गा रे गा मा धा मा धा नि सा, सा नि धा मा गा रे सा। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। सारे गा रे गा मा धा मा धा नि सा, सा नि धा मा गा रे सा। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो।
बात है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अर्ज किया है, राह की मुश्किलों से ना सीखा डरना, राह की मुश्किलों से ना सीखा डरना, ना घबराना। हम है राहे जीवन पथ के, सीखा हमने बस आगे बढ़ना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। कितने ही सेनानियों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले सकें। उनके दिए हुए नारे उस समय भी बुलंद थे, आज भी हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 6ठी और 7वीं के छात्र उन्हीं के संघर्षों और प्रयासों को याद करते हुए प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे सेनानियों के प्रसिद्ध नारे। If yet your blood does not rage, then it is a water that flows in your veins. For what the flush of youth, if it is not service to our motherland? We will face the bullets of our enemies. We are free and will remain free. I shall not give my Jhansi. If defeated and killed in the field of battle, we shall surely earn eternal glory and salvation. We fight for independence in the works of Lord Krishna. We will, if we are victorious, then enjoy the fruits of victory. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! You can kill me, but you cannot kill my ideas. You can crush my body, but you cannot crush my spirit. We should have but one desire today, the desire to die, so that India may live. Give me blood, and I shall give you freedom. As long as I have life, as long as I have blood, froze to the arm of mine, I shall not leave the cruises of freedom. I am not ready to die because it requires high courage to live. Do or die. Freedom is not worth if it does not have the freedom to make mistakes. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. The best way to know yourself is to lose yourself in the service of others. India must be free. India must be a republic. India must be united. March forward. We are for India. India is for Indians. तो चलिए अब इस दौर को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 की हंसिका रोहतगी से मधुर वाद्य धुन सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। नमस्कार, मैं हंसिका रोहतगी आज आपके समक्ष वंदे मातरम प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
सुंदर और मोहक प्रदर्शन था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन यह यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं कक्षा 6ठी स से नित्याशा, मेहुल और दिव्यांशी, और उनका साथ दे रहे हैं कक्षा 7वीं ब के आयुष गोयल, जो अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सामूहिक कविता खूनी हस्ताक्षर। इस कविता में बड़ी अद्भुत तरीके से उस समय का चित्रण किया गया है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था। यह कविता बताती है कि सही मायनों में हमने आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई है। कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसने जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्तवन धमक उठा, धमकी उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहू ऊंची करके वह बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कौसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस ही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब चढ़ता, लो यह कागज है कौन यहाँ हस्ताक्षर करता। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। यह कोई साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पे तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रथ गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महा। तो चलिए इस दिन के आखिरी प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां 8वीं कक्षा के छात्र देशभक्ति के गीतों पर एक मनमोहक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 पम, आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, वंदे मातरम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आज इस शुभ दिन पर उन महान आत्माओं को हमारा शत शत प्रणाम। एक बार पुनः आप सबको आज़ादी की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।